Continue with concentration units. जब हम concentration units की बात करते हैं तो let's talk about one more concentration unit, and that concentration unit which we know is called molality. Molality is called molality, which is represented by small m. It is equal to moles of solute divided by moles of the solute divided by the mass of solvent in kilograms. Mass of the solvent in kilograms. So that is what we have as the molality. सर इस क्लास को हम डायरेक्ट ज्वाइन क्यों नहीं कर पाए? इसको इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि मैं आपको लिंक भेजना भूल गया था ईमेल पे. ओके सर. ओके. मुझे लगा था कि मैंने सबको ही लिंक भेज दिए बट नहीं हुए थे. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. कल से मत बोलना. क्या लिंक मैं भेजना. तो भूल भी गया तो क्या हुआ, ज्वाइन तो हो गए तुम. हाँ, वो अलग बात है. तो बेटा बात ये होती है ज्वाइन किया या नहीं किया. ओके. नाउ that's what we have as something called molality. तो molality की definition हमें समझ में आ गई. Molality is moles of the solute per kilogram of the solvent. और यहां पर इस बात का ध्यान रखना कि we are talking about solvent. ठीक है. चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए. Calculate the molality of 98% H2SO4 solution by mass. ठीक है. There is 98% sulfuric acid solution by mass. So what would be its molality? Molar mass of sulfuric acid is 98 grams per mole. तो इसकी मोलालिटी क्या होगी? सबका आंसर गलत है. इन सारे के सारे रिएक्शंस के अंदर इट्स नॉट द सॉल्वेंट विच इज मोर, वाटर इज द सॉल्वेंट.
So one है आंसर। नहीं, सर अब तक क्या हुआ है? अब तक हमने एक क्वेश्चन दिया है सामने मोलालिटी का। नहीं, आंसर 0.5 भी नहीं है। हम्म, हम्म, हम्म। हमारे पास सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम्स। इसमें H2SO4 का मास है 98 ग्राम। इसमें वाटर का मास है 2 ग्राम, विच इज इक्वल टू 2/1000 किलोग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स हैं 98/98 इक्वल टू 1। अब मोलालिटी is equal to moles of the solute divided by mass of the solvent in kilogram. The answer is 500 molal. तो सॉल्यूशन का मास तो 100 ग्राम्स कहीं पे दिया नहीं था। तो 100 ले लेते, 1000 ले लो, 100 ले लो, जो मर्जी ले लो। आंसर 500 ही आता। आंसर 500 है। नहीं, अगर 1000 ग्राम्स मतलब 1 kg ले लेते ले लो, क्या दिक्कत है? तो तब भी आंसर 500 ही आता। अरे लेके देखो ना भाई, अच्छा। देखो क्या आता है आंसर। चलो एक क्वेश्चन और कर लो। क्वेश्चन इज
density of 98% H2SO4 is 1.8 grams per centimeter cube. ठीक है? What is the molarity? चलो फटाफट ये सॉल्व कर दो. What is the molarity? सर 108.64 आ रहा है. अर्नब, अगर तुम सॉल्यूशन 1000 ग्राम लोगे तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना है? 98%. ओह अच्छा. पहली लाइन देखनी थी. ओके सर, समझ गया. और सर वो क्वेश्चन दिख नहीं रहा, क्या लिखा है? एक बार डिक्टेट कर दीजिए. Density of 98% sulfuric acid is 1.8 gram per centimeter cube. 1.8 grams per centimeter cube. आगे What is the molarity? सर चेक कर लो आंसर. देखते हैं. सही है नहीं है सर? सही है. इस क्वेश्चन को करने का सीधा सीधा तरीका ये है. सर मोलारिटी निकालना है ना. हाँ, मोलारिटी निकालना है. सो आई थिंक यू ऑलरेडी नो इट. इसका आंसर 18 मोलर है. Let the mass of solution be 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम. ठीक है. Mass of H2SO4 is equal to 98% of 1000, that is 980 grams. ठीक है. Moles of H2SO4 is equal to 980
by 98 is equal to 10. Volume of solution is equal to mass of solution by density is equal to 1000 by 1.8. ठीक है? That is equal to 1000 upon 1.8 into 1000 liters. अब let's substitute it. तो molarity is equal to moles divided by volume. So it becomes 1000 multiplied by 1.8 into 1000. That's equal to, कोई दिक्कत? कोई डाउट इसमें? So that's the answer. Okay, now let's talk about another concentration unit. And the other concentration unit that we talk about is called mole fraction. Mole fraction represented by symbol chi. This is equal to moles of a component divided by total moles in a system. That is what we have as mole fraction. ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं. Calculate mole fraction of each component. Mole fraction of each component in a solution containing 78 grams benzene, which is C6H6. Molar mass is 78 grams per mole, and 184 grams toluene. Toluene is C7H8. Molar mass is 92 grams per mole. Solve करो जल्दी से. आरव, मोल फ्रैक्शन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो आंसर 4/3 आ ही नहीं सकता. सर 3/4 नहीं तक है. गलती से लिख दिया. 3/4 भी नहीं है बेटा, चेक करो फिर से.
सर 2/3। 2/3 है ना सर? हाँ जी बेटा। ओके, अब एक और क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन of solute in 1 molal aqueous solution. Answer. Calculate the mole fraction of solute in 1 molal aqueous solution. Think again. So to whom? Don't know. नहीं, 1 नहीं है। मोल फ्रैक्शन 1 कैसे हो सकता है? सॉल्यूशन है ये। Now? अप्रॉक्स है ये। ये अप्रॉक्स है? हम्म ओ, नहीं। It is 1 by 56.5. देखो, moles of solute is equal to 1. Moles of water is equal to 1000 by 18. 1000 ग्राम पानी है ना, 1 किलो पानी है। मोलालिटी है ना यहाँ पे। अब निकाल लो। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1000 by 18. हो गया सॉल्व?
Okay, write the next question. Calculate the mole fraction. Calculate the mole fraction of each gas. Calculate the mole fraction of each gas in a mixture containing equal mass of hydrogen, helium, methane, and oxygen. Solve. सर लिख दो सर क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड बेटा में। सामने क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पे। सर हीलियम का मास 4 होता है ना? जी ओके सर। एट बाई 11 आंसर नहीं है। इट इज सर नॉट 8 बाई निकाल दो 11। सर। ट्वेंटी एट बाई 41 सर भी नहीं है। ऑक्सीजन O2 लेना ना सर। हाँ जी ओ लेगा ना ऑक्सीजन तो। ऑक्सीजन O2 गैस है। गैसियस फॉर्म में एवरी गैस इज अ मॉलिक्यूल। तो फिर तो हाइड्रोजन हीलियम भी 2 मिलेंगे। अबे हीलियम का 2 कब से हो गया? हीलियम तो He ही होगा ना, मोनोएटॉमिक गैस होती है। हाँ हाइड्रोजन तो H लेंगे ना। H2। थर्टी टू बाई 43 गलत है। सर हाइड्रोजन का 4/7 होगा। वो भी गलत है। गलत है। कितनी बार गलतियां करोगे? अब की बार सीधा आंसर ठीक से करके लिखना।
बहुत गलतियां कर चुके हो। अभी तक आंसर नहीं आया है, किसी का भी सही नहीं है। सर डिनोमिनेटर में 43 होगा ना? नहीं, सर 16 by तो क्या 27. किसका है ये? हाइड्रोजन. ये सही है, बाकी निकालो। हाँ भाई, बाकियों का आंसर आया? सर ये क्वेश्चन कहीं देखा देखा लग रहा है। बिल्कुल देखा हुआ है, मैंने आपको दूसरी बार दिया, हाँ तभी सर आपसे ने नहीं वो, हुआ। हाँ तो सर ये शर्म आपने आनी चाहिए उसमें ना दिया तुम्हें, था। गैसियस स्टेट में सर आपने वो हाँ पार्शियल पार्शियल प्रेशर प्रेशर जब आप निकालने पढ़ा के रहे लिए। थे। हाँ सर टेम्परेचर सेम है. टेम्परेचर, मोल फ्रैक्शन में टेम्परेचर की जरूरत कहां पड़ गई? अगर तुम इसका टेम्परेचर चेंज कर दोगे, मोल फ्रैक्शन थोड़ी ना चेंज होगा। मोल फ्रैक्शन इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलैरिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, परसेंटेज मास डिपेंड नहीं करता। मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, परसेंटेज बाय मास टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। देखो, लेट द मास ऑफ ईच गैस बी, अब कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड, 1 2 3 100 200 जो मर्जी ले लो, आई एम टेकिंग इट एक्स, ठीक है। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, moles of hydrogen is going to be x by 2, of helium is x by 4, of methane is x by 16, of oxygen is x by 32, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू x by 2 डिवाइडेड बाय x by 2 प्लस x by 4 प्लस x by 16 प्लस x by 32. Now solve it. हाँ सर यही तो करा था. तो आंसर क्यों नहीं आया फिर? सर बहुत बड़ी गलती कर दी, हाइड्रोजन का मास में वन लेके चल रहा था। कितनी खुशी की बात है। वही तो सर, कितनी मैंने बड़ी भी गलती वन है। लिया था। देखो कितनी खुशी से बता रहे हो बेटा, एक बार गलती करते हो तो समझ में आता है कि चलो तुम इंसान हो। अगर सर तुम वही खुशी से गलती नहीं बता रहा दोबारा हूँ। करते हो, वही गलती दोबारा करो, वही गलती एग्जैक्टली वही गलती दोबारा करो, तो क्या कह सकते हैं तुम्हारे बारे में? सर एक ही तो बात मेरे हो आंसर सही थे.
एक बार नहीं है, दूसरी बार दिया गया क्वेश्चन है। तो अगर एक ही आपको क्वेश्चन कैसे दूसरी पता बार, पहली बार चीज करी थी? पहली बार तुमसे आंसर निकला था, अगर तुमने पहली बार सही निकाला तो तुम्हें इमीडिएटली पता होना चाहिए ना आंसर अब भी सही निकलेगा। एनीवे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने मोल फ्रैक्शन की बात की और हमने यहीं पर कंसंट्रेशन यूनिट समाप्त किए। Once we have talked about the concentration units, now we are going to talk about a very important thing, and that is what we call as the redox reactions. सर एसटीपी वगैरह नहीं पढ़ेंगे? STP वगैरह क्यों पढ़ेंगे हम अभी? हाँ। एसटीपी नहीं पढ़ेंगे? पढ़ तो लिया बेटा, STP टेम्परेचर प्रेशर बता तो दिया था मैंने तुम्हें एवोगाड्रोस लॉ में। नहीं मतलब आपने एसटीपी नहीं बताया था ना कि क्या होता है, क्या कैसे STP कोई चीज होती ही नहीं है। अच्छा ये तो हमें बताना पड़ेगा ना, मैंने तुम्हें बता तो दिया था कि अगर 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं तो 22.4 लीटर्स है, और 273 केल्विन और 1 बार लेते हैं तो 22.7 लीटर्स है। And सर पता भी तो होना चाहिए, उसी को एसटीपी बोलते हैं। तो बताने की जरूरत भी नहीं है, बोल देते हैं उसको। ओके, लेट्स टॉक अबाउट रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन, और जब रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, number and it's also called oxidation number. ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में कोई फर्क नहीं है, दोनों से एक ही चीज है। ओके, राइट द डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए, the theoretical or formal charge, the theoretical or formal charge left on a species, the theoretical or formal charge left on a species when all groups attached to it, when all groups attached to it are removed, when all groups attached to it are removed with their normal or usual charges. फॉर्मल चार्ज वो होता है जो थ्योरेटिकली किसी स्पीशी पर होना चाहिए, इतना चार्ज इस पर होना चाहिए। एक्चुअली वो चार्ज कभी नहीं होता, बट थ्योरेटिकली होना चाहिए, तो इसलिए वर्ड बोला गया थ्योरेटिकल और फॉर्मल चार्ज। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, इस एग्जांपल को लेके हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ KMNO4, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम परमैंगनेट। इस पोटेशियम परमैंगनेट के ऊपर ओवरऑल चार्ज 0 है, क्लियर? तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज हमारा पास 0 है। We are just going to calculate what the formal charge would be on each. क्या है उसका theoretical charge, क्या बनता है। अब हम क्या करते हैं, इस KMNO4 का जो चार्ज हमारे पास 0 है, इसमें से हम पोटेशियम को हटा देते हैं। जब हम इसमें से पोटेशियम को हटाते हैं तो हमारे पास बच जाता है। क्या हुआ अर्नब, बोलो। इसका क्या अर्नब कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हारा सिग्नल जा रहा है। 0 है? इसका ओवरऑल चार्ज 0 है, KMNO4 का टोटल चार्ज 0 है। तो हमने यहां पर MnO4 में से K को निकाल दिया, तो K को जब निकाला तो K का चार्ज, अपना चार्ज +1 होता है, तो हमने इसमें से +1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास बच गया -1।
तो हम -1 को इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं। तो अब MnO4 का चार्ज -1 सर ये हो गया। समझ में नहीं आया। KMnO4 में से हमने पोटेशियम को हटा सर ये दिया। समझ में नहीं आया। क्या नहीं है समझ में आया? KMnO4 समझ में आया? KMnO4 एक कंपाउंड होता है, ओके। ठीक है। अब KMnO4 में से हमने पोटेशियम को हटा दिया। यस सर, उसका ओवरऑल चार्ज 0 है। यस सर। KMnO4 का ओवरऑल चार्ज 0 है। तो दिस इज द स्पीशी, दिस इज द चार्ज, ठीक है। KMnO4 पे टोटल चार्ज 0 है। अब इस KMnO4 में से हमने पोटेशियम को हटा दिया। ओके, अर्णव पोटेशियम का चार्ज क्या होता है? अर्णव पोटेशियम का चार्ज क्या होता है? पता नहीं सर। पोटेशियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1। गुड। तो पोटेशियम का क्या होगा? नहीं होगा। कितना होगा? अरे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज क्या होगा? +1 होगा। Good. पोटेशियम का ऑक्सीडेशन तो जब मैंने +1 लिखा था तो क्या प्रॉब्लम थी? +1। पोटेशियम का चार्ज +1 है ना? अरे Yes. ना, ठीक है। तो अगर मैं KMnO4 में से पोटेशियम को हटाऊंगा तो यहाँ पे MnO4 बचेगा यस सर। और 0 में से मुझे +1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, यस सर। तो बचेगा क्या? हम्म। गुड, हूं नहीं बचेगा, -1 -1 बचेगा। अब एक काम करते हैं, इस Yes, sir. MnO4 माइनस में से हम एक ऑक्सीजन हटा देते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास चार्ज था -1। अर्णब, ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है नॉर्मल? 2। 2 या -2? -2। गुड। अच्छा, -1 में से -2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या? +1। वेरी गुड, +1। तो ये +1 आ गया, ठीक है। अब इसमें से एक और ऑक्सीजन हटा दो। अब कितना चार्ज आएगा इसके ऊपर? -1। चेक कर फिर से। नहीं। 3 +3। +3, यानी कि यहां पर हमारे पास 3 प्लस चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। अब चलो इन दोनों ऑक्सीजन को भी हटा दो। यहां पर हमारे पास +1 है, इसमें से हम -2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, +3 बच जाएगा। हाँ, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो हमारे पास अब +3 है, उसमें से हम 2 -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? -1। चेक कर। सर -1 ही आएगा सर। अर्नब, -1 ही आ रहा है। बेटा ये 2 माइनस है, 2 माइनस क्या करते हैं? अच्छा वो सॉरी इनटू हो रहा है। हाँ मैं चलो करो आगे, कितना आएगा? 7। +7। समझ आई बात? यस सर। कितने से प्लस है यहाँ पे? 7+। वेरी गुड। तो हम इसको लिखते हैं मैंगनीज 7+। तो अब ये 7+ मैंगनीज की क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे वाह। अब डेफिनेशन पढ़ो और जो किया है वो देखो। अब डेफिनेशन समझ में आई? हाँ भाई, यस सर। लेकिन सर इससे हाँ हाँ, सर इससे पता क्या चलता है फिर? ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उसका कोई यूज है क्या वैसे? अर्नब, तुम्हारे होने का क्या यूज है? Nothing. तो हर चीज यूज के लिए थोड़ी ना होती क्या है, बात कई है? चीजें बस होती है। ओके सर। गुड।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका यूज हो ना हो, इट इज इन योर कोर्स, तो इसलिए करो। ये सब कोर्स होता है। तो कोर्स तो करना ही है। एनीवे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब इस ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने का इससे आसान तरीका था, ये तो बहुत लंबा तरीका है। इससे आसान तरीका क्या है? हमारे पास है KMnO4, ठीक है। पोटेशियम की वैल्यू हमें पता है +1 है, प्लस मैंगनीज की वैल्यू हमें नहीं पता है, हमने मैंगनीज लिख दिया। ऑक्सीजन हमारे पास 4 है और हर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। ओवरऑल चार्ज जो यहां पर लिखा हुआ है वो है 0। कैन वी फाइंड द मैंगनीज? अर्नब सॉल्व करो बेटा। +7. सब +7 आ रहा है। अरे वाह, गुड गुड गुड। तो मैंगनीज इज इक्वल टू +7, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज एंड दैट्स हाउ वी हैव कैलकुलेटेड इट। ठीक है जी। सर वो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक केस में -3 भी होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से केस में -3 होता है बेटा? -1 होता है वो. अरे मुझे गैस में 3 होता है सर। अर्नब क्यों बेइज्जती कर रहा है फालतू? जिज्ञासु सर की इज्जत का फालूदा कर रहे ओके सर, आप पढ़ें। ओके, सर आप कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए। थैंक्स फॉर द परमिशन बेटा। ओके नाउ, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि वी आर एबल टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज ओनली बिकॉज हमें पोटेशियम और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता थी। ठीक है, अगर हमें ऑक्सीजन और पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं होती तो हम मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकते थे। तो इसका मतलब यह है कि हमें कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स याद रखनी पड़ेंगी। तो मैं आपको उन ऑक्सीडेशन स्टेट्स की लिस्ट दे रहा हूं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक टेबल बनाऊंगा और जो मैं टेबल बनाऊंगा आप उस टेबल को एज इट इज रट्टा मारेंगे, उसमें आप अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, हाँ हाँ हाँ. गुड। एंड दिस इज द लिस्ट। वी हैव द ऑक्सीडेशन स्टेट एज +1 और +1 में हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। Then we have the oxidation state as +2. +2 में हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जिंक। फिर हमारे पास है +3। +3 में हमारे पास है बोरॉन, एल्यूमिनियम, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथनम, एक्टीनियम। फिर हमारे पास है +1 और इस +1 में हम लगाते हैं हाइड्रोजन। फिर हमारे पास है -1, इस -1 में हमारे पास है फ्लोरीन, -2 इट्स ऑक्सीजन, -3 दैट्स नाइट्रोजन। Then we have again -1 that सर would वाई be कौन सा chlorine, वाई कौन सा एलिमेंट yttrium, वाई कौन सा एलिमेंट होता है? yttrium, ओके yttrium, सर। yttrium, ओके। यहां पे है ब्रोमीन और यहां पे है आयोडीन। अच्छा, हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता होती है। एंड दोज ग्रुप्स ऑफ एटम्स which have the specific oxidation states, these are
अगर हम उनकी बात करें these would be something like SO4, that's 2 minus, NO3 minus, PO4 3 minus, CN minus, C2O4 2 minus, CO3 2 minus. So these are some groups of atoms जिनकी oxidation state या charges हमें पता है. सर पता है मतलब निकाल भी तो सकते हैं, हाँ जी निकाल भी तो सकते हैं. बेटा, हर वो चीज जो तुम्हें पता है क्या उसको फिर से सॉल्व करोगे? नहीं, तो फिर क्यों कर रहे हो? मतलब बोल सकते हो कि ये टेबल ही याद करनी है. ओके सर क्लैरिटी इशू है, पिक लेके भेज दो. हाँ, क्लैरिटी इशू है तो पिक लेके भेज दो. क्लैरिटी इशू फ्री और डिले. सर पिक पिक भेज दो आप, छोड़ो. पिक भेज दूं ग्रुप पे? ठीक है, पिक भी भेज देता हूँ ग्रुप पे, कोई टेंशन नहीं है. सर हम्म, वैसे ये टेबल डेवलप किसने करा है? मैंने, खुद ही बनाया? हाँ मेरा बनाया हुआ टेबल. अच्छा. सर आई तक को भेजी. हम्म, क्या क्या कह रहा है भाई, ठीक से बोल. आई पैक को भेजी आपने. आईयूपीएसी को इसकी जरूरत नहीं है बेटा. आईयूपीएसी में तुमसे ज्यादा समझदार लोग बैठे हुए हैं. अरे ज्यादा बड़ा खींच गया, कोई बात नहीं. लो, पहुंच गया आपके ग्रुप पे. Okay, so have you taped down the list? चलो ये लिस्ट टेप डाउन करो, और टेपने के बाद आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं. कल की क्लास में हम रिडॉक्स रिएक्शंस आगे बढ़ाएंगे. क्लियर? ओके देन.